کالو کوا بہت آلسی کوا تھا۔ وہ اپنے کھیت میں سبزیاں اگا کر منڈی میں بیچا کرتا تھا، مگر وہ کام کرنے سے بہت ڈرتا تھا۔ ایک دن کالو کوا کھیت میں سبزیاں توڑنے آتا ہے تو اسے نیند آنے لگ جاتی ہے۔ بہت نیند آ رہی ہے، سبزیاں بھی توڑنی ہے، اور اگر یہ سبزیاں نہ توڑی تو ساری سبزیاں گل سڑ جائیں گی۔ کوے کے دماغ میں ایک اپائے آتا ہے۔ کوا زور زور سے چیخنا شروع کر دیتا ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، میری سبزیوں میں سے سانپ ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ چڑیا اور کبوتر کوے کا شور سن کر وہاں آ جاتے ہیں۔ کیا ہوا کوے بھائی، شور کیوں اتنا مچا رہے ہو؟ چڑیا چڑیا، میرے کھیت میں سانپ ہے۔ کالو بھائی، اگر سانپ ہوتا تو مجھے ضرور دیکھ جاتا، لیکن آپ کے کھیت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں چڑیا، میری ماں بھی سانپ کے ڈسنے سے ہی مری تھی۔ سانپ ہے سانپ، اگر آج میں نے اپنی سبزیاں نہ توڑی تو وہ سڑ جائیں گی، میری محنت برباد ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر کالو کوا رونے لگ جاتا ہے۔ کالو کوے کو روتا ہوا دیکھ کر چڑیا کبوتر سے کہتی ہے، کبوتر بھائی، دوست کوا ڈر گیا ہے، ہم اس بیچارے کی سبزیاں توڑ دیتے ہیں، اسی طریقے سے کوا ہمارا دوست نقصان سے بچ جائے گا۔ پھر کبوتر اور چڑیا کالو کوے کی سبزیاں توڑ دیتے ہیں۔ کالو کوا آرام سے سبزیاں بیل گاڑی پر لاتا ہے اور منڈی چلا جاتا ہے۔ میرا پاؤں، ہائے میرا پاؤں، میرا پاؤں۔ وہاں پر طوطا ٹماٹر لینے آ رہا تھا، وہ کوے کی آواز سن کر وہاں پر آ جاتا ہے۔ چپ کرو بھائی، میں تمہاری سبزیاں بیل گاڑی سے اتار دیتا ہوں۔ وہ ایسے اپنے سارے کام دوسروں سے کروا لیتا ہے۔ کوری کوری، چڑیا کو میں نے بہانہ لگایا سانپ کا اور سبزیاں تڑوائی، مٹھو طوطے سے کہا، پیر پر چوٹ لگی اور اس سے سبزیاں بیل گاڑی سے نیچے اتروائی۔ کالو جی، ایسے نہ ہو کہیں آپ کسی دن پھنس جائیں۔ اگلے دن کالو کوا پھر اپنے کھیت میں آتا ہے اور زور زور سے چیخنے لگ جاتا ہے، میرا پیٹ میرا پیٹ، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، کوئی میری مدد کرے۔ چڑیا پاس ہی رہتی تھی، وہ کوے کی آواز سن کر وہاں پر آ جاتی ہے۔ کالو بھائی، آپ کے پیٹ میں درد ہے تو میں تمہیں دوا لوا دیتی ہوں۔ چڑیا چڑیا، مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہوں، لیکن جب میں کھیت میں جا کر کام کرتا ہوں پھر سے درد شروع ہو جاتا ہے۔ کالو بھائی، آپ آرام کریں، آپ کی سبزیاں میں توڑ دیتی ہوں۔ پھر چڑیا کبوتر کو بلا لیتی ہے اور دونوں مل کر کوے کی ساری سبزیاں توڑ دیتے ہیں۔ واہ، مزے مزے سے منڈی چلا جاتا ہوں۔ ایسے ہر روز کوا کوئی نہ کوئی نیا بہانہ کرتا اور دوسروں سے کام کروا لیتا۔ ایک دن کبوتر چڑیا سے کہتا ہے، چڑیا چڑیا، وہ کوا ہمیں پاگل بنا رہا ہے، وہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے۔ کبوتر بھائی، مجھے تو ایسا نہیں لگتا، وہ بیچارہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولے گا؟ چڑیا اور کبوتر ایسے باتیں کر ہی رہے تھے، کوے کی پھر سے شور مچانے کی آواز آتی ہے، ٹوٹ گیا میرا پنکھ، گھائل ہو گیا۔ چڑیا اور کبوتر بھاگ کر وہاں واپس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوے کے پنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کالو بھائی، آپ نے یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ چڑیا چڑیا، میرا پنکھ گھائل ہو گیا۔ کوے نے اپنے پنکھ پر لال ٹماٹر کا رس لگا کر پٹی کو بھی لال کیا ہوا تھا۔ چڑیا، میرے پاؤں پر کانٹا چبھ گیا، بہت درد ہو رہا ہے، ہاں میں گیا، مجھ سے اب کام نہیں ہوگا، اب میں اڑ نہیں سکتا۔ کبوتر کی نظر پاس پڑے ہوئے ٹماٹر پہ جاتی ہے۔ کبوتر اچانک شور کرتا ہے، سانپ 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 آ گیا، چڑیا بھاگو، سانپ۔ سانپ کی آواز سنتے ہی کالو کوا کبوتر اور چڑیا سے آگے آگے پہلے اڑ جاتا ہے اور جلدی سے اڑ کر جا کر اونچے پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے۔ شکر ہے میں بچ گیا، ورنہ آج میں سانپ کے ہاتھوں مارا جاتا۔ کبوتر اور چڑیا بھی کالو کوے کے پیچھے آ جاتے ہیں۔
कालू भाई, आपका तो पंख घायल हो गया था, फिर आप कैसे उड़ के आए? चिड़िया चिड़िया, वो तो मैं लाल टमाटर लगाया था, वो तो मैं तुम लोगों से झूठ बोल रहा था। दुष्ट कव्वे, यहाँ से भाग जाओ, और अंदर के बाद हमसे बात नहीं करना। तुम झूठे हो, तुम पक्षी झूठे ही हो, तुमसे दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए। ऐसे कहकर कबूतर और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। छोटी चिड़िया ने अपना छाता संभाल कर रखा हुआ था। वो बारिश का इंतज़ार कर रही थी, कब बारिश हो, कब वो अपना छाता ले और बारिश देखने के लिए बाहर जाए। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। गुड़िया अपने घर में ही बैठी हुई थी कि तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा मम्मा, मेरा छाता, मेरा छाता, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज बारिश देखूंगी। मम्मा, मैं ये छाता लेकर बारिश देखने जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, अगर छाता लेकर बाहर जाना ही है तो ये लो 50 रुपये और कबूतर चाचा की दुकान से पकोड़े भी ले आओ। पकोड़ों का नाम सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और मम्मा से पैसे लेकर अपना छाता लेती है और बाहर चले जाती है। गुड़िया को बहुत मज़ा आ रहा था, वो बारिश भी देख रही थी और बारिश में भीग भी नहीं रही थी। वो अपने घर की निकलती है और जंगल में चले जाती है। जग्गू अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ गुड़िया को देख लेता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है, मम्मा मम्मा, पापा पापा, वो देखो, मुझे भी लेना है ऐसा छाता जैसा आंटी चिड़िया की बेटी गुड़िया ने लिया हुआ है। जग्गू जग्गू, शोर मत करो, मैं तुझे ला दूंगी। कालू जी, सुन रहे हो इसे, इसकी बातें। उस गरीब चिड़िया की बेटी के पास छाता है और एक हमारा जग्गू है, जब भी बारिश होती है मांग कर थक जाता है। मैंने उस चिड़िया को कितनी बार कहा है, अपने बच्चों को ऐसी नई नई चीज़ें लेकर मेरे घर के सामने से ना गुजारा करो। जग्गू जग्गू, तुम ऐसा करो, उससे छाता छीन लो, जब उसकी माँ आएगी तो मैं उसे खुद ही देख लूँगी। अंकल अंकल, मुझे 50 के पकोड़े दे दें। बेटी गुड़िया, ये आपका छाता तो बहुत ही सुंदर है, ये कहाँ से लिया है? अंकल अंकल, ये मेरी नानू ने मुझे जन्मदिन पर दिया था। ये लो गुड़िया बेटी, तुम्हारे पकोड़े और साथ मीठी चटनी भी डालती है। गुड़िया पकोड़े लेकर वापस घर की तरफ उड़ती है। मेरी मम्मा, सबसे प्यारी मम्मा, सुंदर सुंदर आँखों वाली मेरी नानो, सबसे प्यारी नानो, अच्छे अच्छे गिफ्ट देने वाली नानो। गुड़िया बहुत खुश थी जब वो कालू कव्वे के घर के पास से गुजरती है। जग्गू गुड़िया को आवाज़ देता है। वो पहले ही घर के बाहर निकल कर बैठा हुआ था। जग्गू, अगर बैठना ही है तो मेरी तरह छाता लो, नहीं तो अपने घर में जाके बैठो। गुड़िया की आवाज़ सुनकर वहाँ पर कालू कव्वा भी आ जाता है। वो गुड़िया से उसका छाता छीन लेता है। छोड़ो, चलो यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से चली जाओ। अंकल अंकल, मेरा छाता मुझे दे दें। मैं मम्मा को बताऊंगी, मैं जाके अपनी मम्मा को बताऊंगी। गंदे हैं आप, सारे गंदे हैं। गुड़िया रोती हुई अपने घर चले जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारे पसंद के पकोड़े भी मंगवा लिए थे, अब फिर क्यों रो रही हो? मम्मा मम्मा, उस कालू अंकल ने मेरा छाता मुझसे छीन लिया है। गुड़िया बेटी रो मत, मैं उनसे ले लेती हूँ जाके। वो जग्गू थोड़ा सा खेल ले, फिर मैं जाके ले आती हूँ। फिर चिड़िया को रोता देखकर चिड़िया वहाँ से उड़ती है और कालू कव्वे के पास जाती है। ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी है, मेरी बात सुन ही नहीं रही। मैंने कहा भी है जग्गू खेल कर वापस कर देगा। चिड़िया चिड़िया, जग्गू वापस क्यों करेगा? हमने छाता छीना है, मांगा नहीं। चली जाओ यहाँ से, अगर यहाँ पर नजर आई तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगी। मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया रोई जा रही थी। मम्मा मम्मा, मैंने तो अभी अपनी सहेली मीना से मिलने जाना था। मैं सोच रही थी उसके पास जाऊंगी, उसे अपना नया छाता दिखाऊंगी। गुड़िया बेटी रो मत, मैं तुझे पीपल के पत्तों का नया छाता बना दूंगी। मम्मा मम्मा, बाद में बनाने का क्या फ़ायदा, बारिश तो अब हो रही है।
गुड़िया बेटी रो मत, मैं आपको अभी ही पीपल के पत्तों का छाता बना देती हूँ। फिर चिड़िया इतनी तेज बारिश में पीपल के पत्ते लेने के लिए घर से निकलती है। उधर जग्गू बारिश को एंजॉय करते करते पहाड़ों से आगे निकल गया था। वहां पर चील और चीलू की नज़र उस जग्गू पर पड़ती है। मम्मा मम्मा, मुझे भी वैसा छाता चाहिए, मुझे भी वैसा छाता चाहिए। रुको, मैं अभी लेके आती हूँ। यह कहकर चील वहां से उड़ती है और जग्गू के पास जाती है। अरे कालू के कौवे के बेटे, ये छाता इधर मुझे तो दिखाओ। आंटी आंटी, ये छाता मेरी मम्मा ने पहले ही चिड़िया से छीना है, मैं आपको ये छाता नहीं दूंगा। हमेशा ताकतवर ही कमज़ोर से चीज़ छीनता है, जैसे तुम्हारे पापा कौवा चिड़िया से ताकतवर था, उसने उससे छीन लिया, और इसी तरह मैं तुम लोगों से ताकतवर हूँ और मैं तुम लोगों से छीन लेती हूँ। ये कहकर चील उसे छाता छीन लेती है। गंदी हो आपने मेरा छाता छीन लिया, गंदी हो। चील को गुस्सा आ जाता है, वो इसको धक्का देती है और जग्गू नीचे जाके गिर जाता है और झाड़ियों में फेंक देती है वो। मम्मा चिड़िया पीपल के पत्ते लेकर वापस आ रही थी, जग्गू को झाड़ियों में गिरा हुआ देख लेती है। ये कैसे यहाँ पर फंस गया? मम्मा चिड़िया जल्दी से उसके पास जाती है और उसको उठाकर उनके घर ले जाती है। गोरी बहन, ये झाड़ियों में पड़ा हुआ था, पता नहीं वहां पर कैसे चला गया। उठो मेरे जग्गू, उठो, आंखें खोलो मेरे बेटे, उठो जग्गू मेरे बेटे। तुझसे ये छाता किसने लिया, किसने धक्का दिया? मम्मा, मुझसे छाता छीन लिया, मम्मा मुझे धक्का दिया। ये सुनकर कालू कौवा अपना डंडा उठा लेता है। कौन है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने तुमसे तुम्हारा छाता छीना, मेरे बेटे का छाता छीना। मम्मा, वो उन पहाड़ों पर रहने वाली चील थी जिसने मुझसे मेरा छाता छीना। ये सुनने के बाद कालू कौवा अपनी बात को बदल लेता है। कालू भाई, अब मारें, अब अपना डंडा उठाएं, उस चील को जाकर मारें। अब फिर तुम लोगों का सारा गुस्सा मेरे जैसी कमजोर पर ही निकलता है। गोरी और कालू खामोश थे। चिड़िया, मैंने तुम्हारे बेटे की खुद दिल दुखाया, मैंने उसका छाता उठाया, लेकिन तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। अगर तुम मेरे बेटे को उठाकर घर ना लाती तो न जाने ये क्या होता। चिड़िया, हमें माफ़ कर दो। चिड़िया, हमें पता है हमने तुम पर गुस्सा किया, लेकिन गुस्सा हमेशा कमज़ोर पर ही आता है। आज हमें एहसास हो गया है। फिर चिड़िया अपने घर चले जाती है।